जेनेसिस 44 चैप्टर 45 चैप्टर उत्पत्ति का 44 अध्याय 45 अध्याय हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से और हिंदी में बीएसआई बाइबल में से। पवित्र पिता, हम विनती करते पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन से भर, ताकि हमारा आने वाला समय और आज का समय और पिता बीते समय सब कुछ में परमेश्वर के राज्य के भलाई के कामों को हम देख पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। जेनेसिस 44 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। जोसेफ्स पॉलिसी टू स्टे बेंजामिन, जूडास हम्बल सप्लिकेशन टू जोसेफ। फर्स्ट वर्स से, एंड ही कमांडेड द स्टीवर्ड ऑफ हिज हाउस सेइंग, फ्यूल द मेन्स सैक्स विद फूड as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth, and put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken. As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses. And when they were gone out of the city, and not yet far off, Jesus said unto his steward, Up, follow after the men, and when thou doest overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good? Is not this it in which my Lord drinketh, and whereby indeed he divineth? Ye have done evil in so doing. And he overtook them, and he spake unto them these same words. And they said unto him, Wherefore saith my Lord these words? God forbid that thy servants should do according to these things. Behold, the money which we found in our sacks' mouths we brought again unto thee out of the land of Canaan. How then should we steal out of thy Lord's house silver or gold? With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my Lord's bondmen. And he said, Now also let it be according unto your words. He with whom it is found shall be my servant, and ye shall be blameless. Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack, and he searched and began at the eldest and left at the youngest, and the cup was found in Benjamin's sack. Then they rent their clothes and laded every man his ass, and returned to the city. And Judah and his brethren came to Joseph's house, for he was yet there, and they fell before him on the ground. And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? Wot ye not that such a man as I can certainly divine? And Judah said, What shall we say unto my Lord? What shall we speak? Or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants. Behold, we are my Lord's servants, both we and he also with whom the cup is found. And he said, God forbid that I should do so. But the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant. And as for you, get you up in peace unto your father. Then Judah came near and unto him and said, O my Lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my Lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant, for thou art even as Pharaoh. My Lord asked his servant, saying, Have ye a father or a brother? And we said unto my Lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one, and his brother is dead, and he alone is left in his mother, and his father loveth him. And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him. And we said unto my Lord, The lad cannot leave his father, for if he should leave his father, his mother would die. And thou sayest unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more. And it came to pass, when we came up unto thy servant, my father, we told him the words of my Lord.
And our father said, Go again and buy us a little food. And we said, We cannot go down. If our youngest brother be with us, then will we go down. For we may not see the man's face except our youngest brother be with us. And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me 2 sons, and the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces, and I saw him not since. And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my grey hairs with sorrow to the grave. Now therefore, when I come to thy servant my father, and the lad be not with us, seeing that his life is bound up in the lad's life, it shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die, and thy servant shall bring down the grey hairs of thy servant our father with sorrow to the grave. For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father forever. Now therefore I pray thee, let thy servant abide instead of the lad, a bondman to my lord, and let the lad go up with his brethren. For how shall I go up to my father, and the lad be not with me, lest peradventure I see the evil that shall come on my father. Chapter 45. Joseph maketh himself known to his brethren, and comforteth them in God's providence. He sendeth for his father, the spirit of Jacob is revived. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren, and he wept aloud. And the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. Now therefore be not grieved nor angry with yourselves that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be earing nor a harvest. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God, and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt. Come down unto me, tarry not, and thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast. And there will I nourish thee, for yet there are 5 years of famine, lest thou and thy household and all that thou hast come to poverty. And behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you. And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen, and ye shall haste and bring down my father hither. And he fell upon his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept upon his neck. Moreover, he kissed all his brethren and wept upon them. And after that his brethren talked with him. And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren
are come. And it pleased Pharaoh well and his servants. And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye, lade your beasts and go, get you unto the land of Canaan, and take your father and your households, and come unto me, and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. Now thou art commanded this, do ye, take your wagons out of the land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father and come. Also regard not your stuff, for the good of all the land of Egypt is yours. And the children of Israel did so. And Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way. To all of them he gave each man changes of raiment, but to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. And to his father he sent after this manner 10 asses laden with the good things of Egypt, and 10 she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. So he sent his brethren away, and they departed, and he said unto them, See that ye fall not out by the way. And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father, and told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them. And when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. And Israel said, It is enough. Joseph my son is yet alive. I will go and see him before I die. थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 44 अध्याय और 45 अध्याय हिंदी BSI बाइबल पे से पढ़ेंगे। चांदी का कटोरा 44 अध्याय। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कहे, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है वह बुरा किया। तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बात उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाए। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले वह मेरा दास होगा, और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे जल्दी से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गदहा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वही था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसे मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है।
उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। बिन्यामीन के लिए यहूदा का निवेदन। 18 वचन से आगे। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। इसलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। अतः यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कहे कि इस लड़के का जामीन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। 45 अध्याय पहले वचन से। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने का समय यूसुफ के संग और कोई नहीं रहा, और तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यह बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं,
परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहे कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ, और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टोकरे और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदहे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया, और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीवित है, और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की, और वह अपने आपे में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया, और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के गहरे भेद हम पर प्रकट करते रहने के लिए हम पिता तुझसे विनती करते हैं, और यही वचनों के अंदर हमें फिट और फिक्स कर, हमारे विश्वास बढ़ा, हमें डिवाइन पिता परमेश्वर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 10 चैप्टर 21 वर्स से 33 वर्स, जॉब 9 चैप्टर 10 चैप्टर। हम जब पढ़ेंगे अपने व्यक्तिगत समय में, हमारे पर्सनल टाइम में हमें इसे पढ़ना है। हमने फैसला किया है कि हम अपने अंदर से परमेश्वर के आत्मा को वचन से हमारी जांच पड़ताल करने देना है, ताकि हमारे अंदर सुधार आ सके, हम परमेश्वर के रोशनी को देख सके, और परमेश्वर के वचनों के अंदर से हमारे चरित्र बनते जाए। ज़रूरी नहीं सभीयों ने इसी प्रकार से अकेले में बैठकर पढ़ना है, आप अपने तरह से भी पढ़ सकते हैं। निश्चित करना है कि परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा ही के द्वारा हमको सीखना है। प्रभु यीशु मसीह के जो आत्मा ने हमको सीखने का हमारे अंदर आया हुआ है, उसका निश्चित हमने उस पवित्र आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।